everybody. Welcome back. Good afternoon. Good afternoon. Welcome back, everybody. Welcome back. Good afternoon. Good afternoon. My blessings always there, Jim. Good afternoon. Good afternoon. God bless you, Monica. Welcome back. Good afternoon. Good afternoon. Welcome back. Sat Sri Akal, Kulveer. Bharat, my blessings always there. Good afternoon. Good afternoon, everywhere. Everyone, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Welcome back, everybody. I hope all of you have joined. We're going to start. Okay, let's start today's BNSS. In my last introductory lecture, we had discussed about the criminal justice system. The criminal justice system can be majorly divided into two major parts, the substantive part and the procedural part. The substantive part in criminal law deals with offenses. The basic difference between criminal and civil justice system is that each and every offense has been clearly mentioned in law, whether it is BNS, local laws, or special laws. If it has clearly not been mentioned, then it is not an offense. Whereas the substantive law in civil law, much of it is not written. For example, torts. That is why the treatment of the civil justice system is quite different from the treatment of the criminal justice system. Any justice system, as I said, has two major things. One, the substantive law, which gives us or takes away the rights. And in case we infringe it, then in civil law, the relief, in criminal law, the punishment. In civil law, the relief cannot be written. Itna compensation hoga. It depends from case to case. But criminal law में end product is written. इतनी सजा होगी या इस हद तक सजा होगी. And that is why we can say that
criminal justice system is much more cut and dried, unlike the civil justice system, which leaves much to imagination. Last time we discussed the substantive part. We discussed what is an offense. An offense has been, many times this question has been asked in the interview. The word offense has not been defined in BNS. जो उसका substantive act है उसमें नहीं defined. BNSS में defined है. Section 2Q defines an offense as something prohibited by law and made punishable by law. दो जगह offense defined है, एक BNSS में 2Q में और एक General Clauses Act 1897. The definition is the same. दोनों में definition same है, but definition per se of an offense has been given in these two laws. पिछली बार हमने देखा कि ऑफेंस की क्या-क्या कॉनोटेशंस हो सकती हैं, क्या-क्या वेरिएशंस हो सकते हैं. Offense can be bailable, non-bailable, can be cognizable, non-cognizable, and which court is going to try it, and also whether an offense is compoundable or not compoundable. ये सारे एस्पेक्ट्स हमने पिछली बार देखे. We then went on to read के जो प्रोसीजरल लॉ है यानी कि CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे दो अलग अलग सिस्टम्स चलते थे, प्रेसिडेंसीज के अलग थे और प्रोविंसेस के अलग थे. फाइनली फिर एक कोड बना और वो फिर चेंज हुआ एंड फाइनली 1898 का कोड बना जो बहुत साल चला, ऑलमोस्ट 75 साल चला. And then since the 1898 code was basically against the constitution और बहुत सारे आइडियल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो फॉलो नहीं करता था, इसलिए और कोई प्रोसीजर हमने नहीं लिखा बट सीआरपीसी दोबारा लिखा. 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट थी और भी बहुत सारी रिपोर्ट थी छोटी छोटी जिनके बेस पे ये 1973 का कोड बनाया गया. अगेन जरूरत पड़ी, हमने देखा ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस और फिर ये अब 2023 का ये वाला बीएनएसएस आया. We have seen that BNSS or other CRPC or now BNSS, it is in the 7th schedule, it is in the concurrent list and it is entry number 2. क्योंकि concurrent list पे है तो इसलिए इस पे सेंटर भी लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है. However, अगर स्टेट बनाता है, it can't go against the ethos of the parliamentary law. Article 254 makes it very clear. अभी जो हमारे पास जो अब हमने शुरू किया है बीएनएसएस, उसके अंदर पहले जो 1973 की सीआरपीसी थी उसमें 484 सेक्शंस थे, 484 सेक्शंस थे. इस वाले में जो बाद में एबीसीडी थे उनको मर्ज करके 531 सेक्शंस हैं, 39 चैप्टर्स हैं. अभी पहले 37 थे, 2 शेड्यूल्स हैं और 56 फॉर्म्स की जगह 58 फॉर्म्स हैं इन द न्यू बीएनएसएस. ये क्वेश्चन सारे प्रीलिम्स के हैं. Please be careful on this. We saw what are the guiding principles while writing a CRPC. There should be fair trial, there should be natural justice, there should be minimum delay, and we should be following the principles of socialism. कोई भी प्रोसीजर हो, ये 3 बेसिक आइडियल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं. कोई भी प्रोसीजर आप बनाओ. नई सीआरपीसी का जो 1973 की थी उसमें सबसे बड़ा इनका जो अचीवमेंट था वो था कंप्लीट डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ये सबसे बड़ी मैं कह सकता हूं उपलब्धि थी, अचीवमेंट था 1973 का. ऑल्सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिज्म वर ब्रॉट इन
और बहुत सारे एस्पेक्ट्स जैसे कि लीगल एड या एक्यूज की सुनवाई, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आए वो आए कि एक नया जो लाइन है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की, विक्टिमोलॉजी, वो पहली बार 1973 के कोड में आई। बिकॉज पहली बार ये रियलाइज किया गया कि सारा लॉ एक्यूज के एंगल से नहीं लिखा जा सकता। नो डाउट हमारा कॉमन ज्यूरिस्प्रूडेंस है कि लेट 100 accused go free rather than one innocent suffer. But having said this, now the question arises, what about the 100 victims? अगर आप 100 accused को छोड़ रहे हो गलत, तो उनके 100 victims भी हैं, उनके साथ अन्याय भी तो हो रहा है. So law should be balanced. So notwithstanding the fact that law goes with the presumption of the innocence of the accused, फिर भी victims के भी rights दिमाग में रखने जरूरी हैं जब भी law लिखा जाए. इसलिए विक्टिमोलॉजी के एंगल से बहुत सारे सेक्शंस ऐड हुए. जो पहले सेक्शंस 357, 357 ए बी सी या 358, 359 एंड 372 सीआरपीसी थे, आज के दिन में वो बन चुके हैं सेक्शन 395, 396, 397, 398, 399 एंड 400. ये आपके सारे सेक्शंस विक्टिमोलॉजी का एक पार्ट है और छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो हम बात करेंगे. सो 395 to 400 is basically dealing with compensation and victimology ka part. In other words, understanding and respecting the rights of a victim. It's not that we are going against the age old maxim of presumption of innocence of the accused. ये नहीं है कि हम उसको accused को अब गुनाहगार मान रहे हैं. हम आज भी मान रहे हैं कि वो innocent है, but at the same time we are also giving the victim his due. एक चीज जो हमने डिस्कस की थी, एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी, एप्लीकेशन ऑफ बीएनएसएस. इसके लिए हम लेट्स गो टू द रेलेवेंट सेक्शंस बिफोर आई मूव अहेड. पहले हम चलते हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ सीआरपीसी, कहां कहां लागू होती है. दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. The provisions of this Sanhita, other than those relating to chapters 9, 11 and 12, पिछली बार हमने डिस्कस किया था, ये 3 चैप्टर्स पूरे इंडिया में लागू होंगे. So these 3 chapters, all dealing with law and order and maintenance of public order, ये पूरे इंडिया में लागू होंगे. इनके अलावा CRPC or rather now BNSS will not apply to the state of Nagaland or to tribal areas which are defined in the 6th schedule para 20, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में से पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं. However, हमने देखा पिछली बार कि अगर ये वाले कंसर्न टेरिटरीज चाहें तो सीआरपीसी और रादर बीएनएसएस को अप्लाई कर सकते हैं, पार्शियली कर सकते हैं, कंप्लीटली कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी कर सकते हैं. However, the Honorable Supreme Court has held कि जहां भी वो चेंज करें या जहां भी अप्लाई करें, स्पिरिट ऑफ सीआरपीसी मस्ट नॉट बी इन्फ्रिंज्ड. तो जब भी ये नहीं है कि आप सीआरपीसी को पूरा तोड़ मरोड़ के उसकी स्पिरिट के खिलाफ ही उसको लागू कर दो. सो मॉडिफिकेशन कैन बी अलाउड विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सीआरपीसी. तो उससे बाहर नहीं जा सकते. आप चेंज तो कर सकते हो, बट मॉडिफिकेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इथॉस ऑफ सीआरपीसी. नाउ ये मामला आया था मोवू MOWU वर्सेस
Superintendent Special Jail, Superintendent Special Jail, Assam, 1971 Supreme Court. Muvu versus Superintendent Special Jail, Assam, 1971 Supreme Court, जिसमें यह क्लियर किया गया कि सिंपल नोटिफिकेशन से आप चेंजेस कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, बट हैविंग सेड दिस, जो इसका मॉडिफिकेशन होगा वो सब्सटेंस ऑफ सीआरपीसी के खिलाफ नहीं हो सकता, इथॉस ऑफ सीआरपीसी के खिलाफ नहीं हो सकता। अब क्योंकि ट्राइबल एरियाज जो हैं वो 4 स्टेट से डील करती हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मेघालय का जो कैपिटल है वो है शिलोंग। अब शिलोंग जो है कायदे से एक ट्राइबल एरिया नहीं है, 2 ट्राइब्स आर देयर, नो डाउट, इसीलिए खास शिलोंग को बाहर रखा गया। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है कि ट्राइबल एरियाज जो हैं वो 4 स्टेट्स में आती हैं। अगर हम 6 शेड्यूल पे जाते हैं, 4 स्टेट्स पे डील करती हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नाउ मेघालय का जो कैपिटल है शिलोंग, वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि टेरिटरीज विच फॉल इन द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ शिलोंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्लीज बी वेरी केयरफुल कि मेघालय का ऐसा कौन सा एरिया है जो ट्राइबल एरियाज होते हुए भी नहीं है, वो ये शिलोंग है जो उनका कैपिटल है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग। जहां शिलोंग की म्युनिसिपैलिटी है वो जो है, इसका मतलब है वहां पे सीआरपीसी लगेगी। तो क्या मेघालय में पूरी सीआरपीसी लगेगी? नहीं, पर क्या शिलोंग में लगेगी जो उनका कैपिटल है, उनकी म्युनिसिपल लिमिट्स में। तो जो उनका म्युनिसिपल लिमिट से बाहर है वहां नहीं लगेगी, पर म्युनिसिपल लिमिट्स में शिलोंग के लगेगी। अगला हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 4, construction of references. All offenses under BNS 2023, तो पहला सब सेक्शन डील करता है बीएनएस से, आईपीसी से। आईपीसी के सारे सेक्शंस में किन किन चीजों से डील करेगी? पहला, इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, इंक्वायरीज। तीसरा, ट्रायल। एंड चौथा है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है कि जो चीजें इन 3 चीजों में नहीं आ रही उन सब पे सीआरपीसी लगेगी। ये मामला क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलबीर सिंह। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलबीर सिंह, 1994 सुप्रीम कोर्ट। और अदरवाइज मेक्स इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि हर चीज जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रोसीजर से जुड़ी हुई है वो इसमें आ जाती है। सो एंड और अदरवाइज डेल्ट विद से ये कॉम्प्रिहेंसिव कोड बन गया। बिकॉज ऑफ द यूजिंग ऑफ द वर्ड अदरवाइज it becomes a comprehensive code. So that means it deals with all aspects of procedure regarding offenses. क्वेश्चन ये उठता है कि अदरवाइज डेल्ट विद में क्या नहीं आएगा? सपोज हम कोई किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला रहे हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या उस पे सीआरपीसी लगेगी? द आंसर इज नो। आरपी कपूर वर्सेस प्रताप सिंह कैरो, आरपी कपूर वर्सेस प्रताप सिंह कैरो, 1964 सुप्रीम कोर्ट।
CRPC provisions do not apply to disciplinary proceedings. So otherwise dealt with में disciplinary proceedings नहीं आएंगी. दूसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उस पे सीआरपीसी लागू नहीं होगी. अदरवाइज डेल्ट विद में कंटेम्प्ट नहीं होगा. कंटेम्प्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में उसका पूरा अपना ही तरीका है. तो क्योंकि अपना तरीका अलग दिया हुआ है, ये मामला अगेन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने. सुखदेव सोडी वर्सेस चीफ जस्टिस एंड जजेस पेप्सू. सुखदेव सोडी वर्सेस चीफ जस्टिस एंड जजेस पेप्सू हाई कोर्ट, 1954 सुप्रीम कोर्ट. इसमें ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्लीज ख्याल रखिएगा. सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स. चाहे कंटेम्प्ट में 6 महीने की सजा होती है, बट फिर भी सीआरपीसी लागू नहीं होता. 1954 इसमें जजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है इस पे, और इसमें क्लियर किया गया था कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इज नॉट एनी अदर लॉ. जो हम कहते हैं सीआरपीसी अप्लाइज टू बीएनएस एंड अदर लॉज व्हिच डिफाइन ऑफेंसेस, उस एनी अदर लॉ में कंटेम्प्ट नहीं आता. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट एक कंप्लीट एक्ट है जो स्पेशल जुरिस्डिक्शन देता है हाई कोर्ट को. क्योंकि स्पेशल जुरिस्डिक्शन है ये हाई कोर्ट का, इसलिए सीआरपीसी अप्लाई नहीं करेगी. इसलिए जब हम बात करते हैं ऑल ऑफेंसेस अंडर बीएनएस, तो जितने भी ऑफेंसेस है उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अदरवाइज जुड़े हुए मामले, फॉर एग्जांपल अदरवाइज में बेल, या आप मेरी प्रॉपर्टी वापस दो, ये सब जो जुड़े हुए मामले होते हैं उनमें या लिमिटेशन, ये सारी चीजें एज पर सीआरपीसी होंगी. ये तो हो गया बीएनएस. व्हाट अबाउट अदर लॉज? अदर लॉज कौन से होते हैं? यहाँ लोकल लॉज होते हैं या स्पेशल लॉज होते हैं, दो ही होते हैं. उन दोनों को डील करता है सबसेक्शन 2. चलिए देखते हैं. ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ shall be investigated, inquired into, and tried and otherwise dealt with according to the same provisions of CRPC or BNS, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiry, or trying or otherwise dealing with such offenses. However, other laws में अगर कोई प्रोसीजर दिया हुआ है तो वो सब्जेक्ट उन लॉज के हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल एनडीपीएस में बेल प्रोविजंस अलग है, उनका टाइम पीरियड अलग है. पॉक्सो में अलग है प्रोसीजर. तो नाउ एनडीपीएस, पॉक्सो या कोई भी ऐसा लॉ है वो ओवरराइड करेगा बीएनएसएस को. जैसे कि अभी हमने देखा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट एनी अदर लॉ में नहीं आता. सिमिलरली आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, ये तीनों इसमें नहीं आते. इनके अपने तरीके हैं, इनके अपने कोर्ट मार्शल के तरीके हैं. दे विल ओवरराइड सीआरपीसी. ये मामला आया था मेजर जीएस सोडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1991 सुप्रीम कोर्ट. मेजर जीएस सोडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1991 सुप्रीम कोर्ट. उसमें ये क्वेश्चन उठा कि आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, they are governed by Indian Evidence Act. Since they are governed by Indian Evidence Act, shouldn't they be governed by CRPC? So Supreme Court categorically said, quoting this section, कि unless कोई और enactment है इन चीजों को लेकर, फिर सीआरपीसी लागू नहीं होगी. तो इसीलिए एविडेंस एक्ट तो अप्लाई करेगा पर सीआरपीसी लागू नहीं होगी.
हाँ, then no, then अगर साइलेंट है, then of course they can take the use of CRPC everywhere. सिमिलरली जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, फेमा, वहां पे चाहे वो एक ऑफेंस का एक्ट है, बट सीआरपीसी इज नॉट एप्लीकेबल. क्यों? उनका अपना प्रोसीजर दिया हुआ है. ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1996 सुप्रीम कोर्ट. तो फेमा प्रोसीडिंग्स में भी, क्योंकि उनका अपना लॉ है, स्पेशल लॉ है, अपने उनके तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन के, इसलिए सीआरपीसी लागू नहीं होगी. सिमिलरली जेजे एक्ट, इसके अंदर स्पेशल प्रोसीजर है वाइल डीलिंग विद जुवेनाइल्स. तो जहां डिलिंक्वेंट जुवेनाइल्स कोई ऑफेंस कर रहे हैं, उनका अलग प्रोसीजर है, तो सीआरपीसी लागू नहीं होगी. सो जेजे एक्ट पे भी डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें ऑफेंसेस हैं, लागू नहीं होगी. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने. एएस गौरव वर्सेस एसएन ठाकुर, 1986 सुप्रीम कोर्ट. एएस गौरव वर्सेस एसएन ठाकुर, 1986 सुप्रीम कोर्ट. क्वेश्चन ये उठा कि सपोज सीआरपीसी में कोई प्रोविजन ना हो और कोर्ट को लगे कि जस्टिस के लिए ये चीज करनी है, तो क्या कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर जस्टिस देने की यूज करके वो चीज कर सकता है? क्वेश्चन केम कि सपोज सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं है और कोर्ट कोई चीज, कोई रिलीफ देना चाहता है और वो रिलीफ सीआरपीसी में नहीं दिया हुआ, और हर कोर्ट जो होता है उसके पास इनहेरेंट पावर होती है जस्टिस देने की, तो क्या अपनी इनहेरेंट पावर यूज करके वो रिलीफ दे सकता है? ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के इस केस में. इस 1986 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, क्रिमिनल लॉ में इनहेरेंट पावर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट को दी गई है, इसलिए अगर आपके पास वो पावर नहीं है, आप सीआरपीसी के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते. अगर आपको कोई रिलीफ देना है जो सीआरपीसी में नहीं दिया गया, तो हाई कोर्ट में जाओगे. सो यहां पे एक बहुत बड़ा फर्क आ गया सिविल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का. लेट मी फिनिश. तो जहां पे सिविल जस्टिस सिस्टम है, वहां पे हर कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है. हर कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है. वो अगर कोई बेनिफिट नहीं दे पा रहा सीपीसी में, तो वो दे सकता है यूजिंग माय पावर्स अंडर 151 सीपीसी. इन स्टार्क कंट्रास्ट सीआरपीसी में नहीं है. सीआरपीसी में नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट कि हर कोर्ट के पास एक बेसिक इनहेरेंट पावर होती है, बट सीआरपीसी रिकॉग्नाइज नहीं करता. और स्पेसिफिकली सीआरपीसी कहता है हम सिर्फ एक कोर्ट की इनहेरेंट पावर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और वो है हाई कोर्ट. सो याद रखना, लोअर कोर्ट्स डू नॉट हैव द पावर टू यूज देयर इनहेरेंट पावर. अगर कोई प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं है, वो उसके बाहर जाके रिलीफ नहीं दे सकते. फॉर एग्जाम्पल, क्वॉशिंग ऑफ एन एफआईआर, एक झूठी एफआईआर दर्ज करा दिया, मुझे पता है ये झूठी है, तो मैं क्या क्वॉशिंग कर सकता हूं? क्या सीआरपीसी में क्वॉशिंग है? कहीं नहीं है. तो क्वॉशिंग के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट जाना पड़ेगा. आई होप एवरीबॉडी इज, यस, योर क्वेश्चन. नो, नो, पार्टी मूव करेगी. ही जस्ट रिफ्यूज दैट कि मेरे पास है ही नहीं. ओके, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस वेरी वेरी बेसिक थिंग्स. ओके, चलिए अब आते हैं हम सेक्शन 5. Nothing contained in this Sahita shall, in the absence of a specific provision to the contrary, affect any special or local law for the time being in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed
by any other law for the time being in force. General laws are always overridden by special laws. Special laws always override जनरल लॉस. ये एक बेसिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो यहां रिफ्लेक्टेड है. सो जहां पे कोई स्पेशल लॉ है, कोई लोकल लॉ है, या कोई स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है किसी कोर्ट को और अपना प्रोसीजर दिया गया है, वो सीआरपीसी को ओवरराइड करेगा. इसका मतलब है जितने भी प्रोसीजर्स लोकल लॉज के हैं, जितने भी प्रोसीजर स्पेशल लॉ के हैं, हो सकता है सीआरपीसी के खिलाफ हो, तो भी दे विल ओवरराइड सीआरपीसी. आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस. सेम चीज हमने सीपीसी में भी देखी थी. सेक्शन 4 में यही चीज थी, वहां भी, यहां पे भी सेक्शन 5 है, सेम चीज बता रहे हैं. ओके, सो नाउ वी सी कि कहां कहां लागू होती है और कहां नहीं होती. नाउ दैट वी आर क्लियर ऑन दिस, चलिए अब एक गेड़ा मार के आते हैं पूरी सीआरपीसी का. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट्स. पहला पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा पार्ट होता है प्री ट्रायल, तीसरा पार्ट होता है ट्रायल, और चौथा पार्ट होता है रिफॉर्मेशन. मैं रिफॉर्मेशन ही कहूंगा आज के दिन में. जैसे कि मैंने बताया था, 2 टाइप के ऑफेंसेस हैं, कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल. कॉग्निजिबल में पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है बिना वारंट. नॉन कॉग्निजिबल में गिरफ्तार भी नहीं कर सकती और उसको इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकती. 2 वर्ड्स यूज होते हैं, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी. आई वाला इंक्वायरी, ई वाला इंक्वायरी नहीं है. इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस करती है, या अगर पब्लिक के आदमी को बोले कोई कोर्ट, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन कहलाती है. इंक्वायरी हमेशा कोर्ट करती है, चाहे एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट हो, चाहे कोई भी हो. कोर्ट अगर करेगी तो वो इंक्वायरी कहलाएगी. यानी कि पुलिस वाला इंक्वायरी नहीं करता और मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता. दीज 2 वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड. पुलिस ऑलवेज इन्वेस्टिगेट्स, पुलिस नेवर इंक्वायर्स, एंड मैजिस्ट्रेट ऑलवेज इंक्वायर्स एंड नेवर इन्वेस्टिगेट्स. तो जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा इन्वेस्टिगेशन, समझ लेना कि ये पुलिस कर रही है. शुरुआत होती है कि मेरे साथ ऑफेंस हुआ, something which is prohibited by law and made punishable by law. We have to determine now whether he has committed that offense or not, and what should be his punishment. End product is whether he has committed or not, and what should be his punishment. An offense is committed against not the victim but the entire society, against the state. इसलिए अनलाइक सिविल जस्टिस सिस्टम जहां कुछ भी फ्री नहीं है, यहां सब कुछ फ्री है, क्योंकि स्टेट विल डू एवरीथिंग ऑन योर बिहाफ. सिविल लॉ में कौन अपने एविडेंसेस लेके आता है? प्लेंटिफ. कौन इकट्ठे करता है? प्लेंटिफ. यहां पे स्टेट इकट्ठे करती है एविडेंसेस. स्टेट एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, तो स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करे? नेचुरली वो ऐसे लोग चाहिए जो
थोड़े ट्रेंड हो इस चीज में, उन ट्रेंड बंदों को हम पुलिस कहते हैं। इसीलिए जब भी मेरे साथ कोई ऑफेंस होता है और वो कॉग्निजेबल है, तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस कहां रहती है? एक चीज है जिसका नाम थाना है। तो थाने बेसिकली क्या है? स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थाने में जाके आई एम गोइंग टू द स्टेट। अब एक चीज याद रखना, क्योंकि ऑफेंस इज नॉट ओनली अगेंस्ट द विक्टिम बट अगेंस्ट द होल स्टेट, जरूरी नहीं है कि विक्टिम ही लॉ इन मोशन सेट करे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली द विक्टिम कैन लॉज एन एफआईआर, एनीबडी कैन लॉज एन एफआईआर। सो एक चीज याद रखना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोई भी सेट इन मोशन कर सकता है, अनलाइक सिविल जस्टिस सिस्टम जहां सिर्फ प्लेंटिफ कैन सेट इट इन मोशन। नाउ once I go to the police, if it is a cognizable offense, police will first, इसीलिए वर्ड प्लीज रिमेंबर, एफआईआर वाला जो हम सेक्शन पढ़ेंगे उसमें कहीं भी वर्ड विक्टिम नहीं है, वर्ड है इन्फॉर्मेंट। सो याद रखना, इन्फॉर्मेंट जरूरी नहीं है कि विक्टिम ही हो, कोई भी हो सकता है, एनीबडी। सो पुलिस विल नाउ, अगर आप लिखित में ले गए तो उसको एज इट इज लिखेगी। एक एफआईआर रजिस्टर में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखेगी, ये मेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेंट मेरे पास थाने में लाया है, इससे पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू होगा। एफआईआर क्या है? एक एलिगेशन है, एक एक्यूजेशन है, मेरे खिलाफ ये ऑफेंस हुआ है और फला लोगों ने किया है, और अगर नहीं किया, मुझे नहीं पता किसने किया, तो आप लोग ढूंढो। on lodging of this FIR, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर हो जाता है और वो इसके लिए अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन का तरीका क्या है? जैसे कि सीआरपीसी कहती है, सॉरी मेरे मुंह पे सीआरपीसी चढ़ा हुआ है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, रीड इट एज बीएनएसएस। तो पहला क्या करेगा एज पर बीएनएसएस सीआरपीसी? वो मौके पे जाएगा, ही विल प्रोसीड टू द स्पॉट, क्योंकि मौके पे एविडेंसेस पड़े हैं। इसे सबसे पहला काम क्या करेगा? ही विल प्रोसीड टू द स्पॉट, और वहां पे जो जो एविडेंसेस इकट्ठे कर सकता है वो करेगा, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हैं, चाहे वो खून है, चाहे कुछ भी है। उसके बाद वो जो अब हमारे टूल्स आ जाते हैं, ही विल नाउ अरेस्ट द एक्यूज्ड। जहां अरेस्ट होता है, अब डिपेंड करेगा अरेस्ट किस तरह का है, कौन से ऑफेंस है, इज इट अ बेलेबल ऑफेंस और इज इट अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल ले लेगा, प्रोवाइडेड वो अपनी सिक्योरिटी दे दे, और नॉन बेलेबल है तो कोर्ट में ले जाएगा। बेलेबल ऑफेंस में मेरी राइट है, नॉन बेलेबल में मेरा राइट नहीं है। अरेस्ट के बाद जरूरत पड़े तो सर्च करूंगा, तो पहले सारे अरेस्ट के प्रोविजंस, फिर सारे सर्च के प्रोविजंस। बाई चांस नहीं मिल रहा तो उसके लिए समन्स भेजूंगा, समन्स काम नहीं कर रहे तो वारंट्स करूंगा, वारंट्स भी काम नहीं करे तो प्रोक्लेमेशन करूंगा, प्रोक्लेमेशन भी काम नहीं कर रहे तो आपकी प्रॉपर्टी कुर्क कर लूंगा। सर्च वारंट्स लेके आऊंगा, आपका घर सर्च करूंगा। प्रोसीजर क्या है सर्च का? क्या बिना वारंट भी सर्च कर सकता हूं? ये सारे प्रोसीजर्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आएंगे। उसके बाद ये तो हो गया अक्यूज का मामला, रिकवरी ऑफ एविडेंसेस का मामला, विटनेसेस हैं, उनका एग्जामिनेशन, उनकी स्टेटमेंट लूंगा, क्योंकि वही स्टेटमेंट जब वो बाद में आएगा कोर्ट में,
उसी से हम कॉस्ट करेंगे उसको कि तूने पहले तो ये कहा था, अब ये कह रहा है। रोज जब जो वो अपनी जो जो इन्वेस्टिगेशन में आगे प्रोग्रेस करेगा, वो उसमें अपनी रोज की एक डायरी लिखेगा। याद रखना, दो तरह की डायरीज होती हैं क्रिमिनल लॉ में। एक होती है केस से संबंधित डायरी। डायरी क्या होती है? रोज लिखते हो आप, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, यू नो, आज मैंने ये किया, आज बहुत खराब दिन था। आप अपनी डायरी लिखते हो। मन की बात, आई एम नॉट रेफरिंग टू मोदी जी। सो मन की बात लिखते हो आप। आज मैं वहां गया, मुझे उसने ये बताया, चाय वाले ने बताया, ये दोनों यहाँ बैठ के रोज घूरते रहते थे, इनसे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। गांव में ये बात फैली हुई है कि इन्होंने मर्डर किया, इनसे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। यानी कि मैं मन की बात में हियर से चीजें भी लिखता हूं, क्योंकि मेरी मन की बात है। उसको हम कहते हैं केस की डायरी। अब केस की डायरी तो मन की बात है, इसलिए केस की डायरी कभी एविडेंस नहीं होती है। बट मुझे उसका माइंड समझने के लिए बहुत जरूरी होती है। केस डायरी इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि उससे मैं गर्दन पकड़ सकता हूं आईओ की। उसकी केस डायरी जाती है उसके सीनियर के पास, वो कहेगा परसों तो लिख रहा था इन दो को मैं गिरफ्तार करने जा रहा हूं, आज तो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये तो बेचारे दूध के धुले हुए हैं, दिख रहा है पैसे खा गया। So, we can actually catch hold of any turn which he is making. और if he is not investigating a certain thing जो हमें दिख रहा है करनी चाहिए, हम उसको पकड़ सकते हैं। तो केस डायरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। जब मैं पुलिस में था, जब मैं एसपी था, तो केस डायरी से मैं उनको पकड़ लेता था 1 सेकंड में। मैं कहता छोड़ दिया फाइल, 2 मिनट में केस डायरी पढ़ता था, देख लेता था यहाँ टर्न मार रहा है, वहां फ्लैगिंग कर देता था, अगले आ जाओ। तो वो फिर डर रहे, they used to be very scared, पर उनको पता था पकड़े गए। एंड देन आई हैज टू गिव ऑर्डर्स, कुछ नहीं, करो जाके अरेस्ट करो उसको। सो केस डायरी पहला पॉइंट है कि आपके सीनियर ऑफिसर्स एंड कोर्ट, सी कोर्ट की कोई भी पावर नहीं है इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर करने की। सुप्रीम कोर्ट के अम्टीन नंबर ऑफ जजमेंट्स, you will not interfere in investigation because investigation is basically a professional thing. But having said this, इसका मतलब तो ये क्या हुआ कि जब तक हम फाइनल इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं करते थे और फाइनल रिपोर्ट में नहीं जाते थे 173 में, कोर्ट बेचारा, क्या कहते हैं हिंदी में, मूक दर्शक बैठ के बन के बैठा रहता था कि यार कर लो कर लो। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, साकिरी वासु, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। साकिरी वासु वर्सेस उत्तर प्रदेश 2007 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सही है कि आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं करोगे, बट अगर आपको गड़बड़ दिखे तो आप इंटरफेयर कर सकते हो। तो आप कैसे पकड़ोगे गड़बड़ है? या तो पार्टी आपके पास आके रोए, और या फिर केस डायरी से। इसलिए केस डायरी एक भेजी जाती है कोर्ट को। इसलिए हम नॉर्मली कई बार 3-3 4-4 केस डायरियां लिखवाते हैं। एक एसपी लेता है, अगर खासकर जैसे रेप के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, तो एक डायरी केस, एक जाएगी डीएसपी को, एक जाएगी एसपी को, एक जाएगी कोर्ट में, एक रहेगी फाइल में। तो इसीलिए केस डायरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि उसमें हमें पूरी कहानी नजर आ जाती है कि कैसे चला, कि पहले दिन से आखिरी दिन तक। इवन ये लिखा होता है, आज सुबह मन एसएचओ या मन आईओ फला फला गाड़ी में फला फला लोगों के साथ इस गांव में पहुंचा, इस इन्वेस्टिगेशन हेतु पहुंचा, वहां मैंने इन लोगों को बुलाया, उनसे ये बात हुई, 4 पेज। इसीलिए प्लीज रिमेंबर, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्पाइट द फैक्ट कि इट इज नॉट एविडेंस, क्योंकि मन की बात है, हियर से एविडेंस पे बेस्ड है, बट ये एविडेंस ना होते हुए भी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्योंकि मैं एज ए पुलिसमैन आपको बता सकता हूं, अगर अगर केस डायरी ना होती तो मैं उन आईओएस को कभी पकड़ ही नहीं सकता था। सिमिलरली कोर्ट,
दूसरी जो डायरी होती है उसको हम कहते हैं डेली डायरी, जिनको पंजाब हरियाणा और नॉर्थ इंडिया में हम रोजनामचा कहते हैं, जनरल डायरी भी कहते हैं। जनरल डायरी थाने की डायरी होती है। जनरल डायरी जो है, केस डायरी जो है, वो सीआरपीसी में दी हुई है, सेक्शन 172 सीआरपीसी में। जनरल डायरी सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखी हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया। जनरल डायरी पुलिस एक्ट में बताई गई है, पुलिस एक्ट 1861 में। और जनरल डायरी का मतलब है कि कुछ भी अगर थाने में हो रहा है वो वहां लिखा होता है। तो एक लिटरेट कांस्टेबल की ड्यूटी होती है कि कुछ भी जो थाने में हो रहा है वो सुबह से, जैसे 8 बजे, जैसे सुबह 24 घंटे चलता है रोजनामचा, 8 बजे मैं एसएचओ ड्यूटी पे आया, इस टाइम पे थाने में ये लोग हैं, फला फला लांगरी जो है वो खाना बना रहा है, 8:30 बजे खाना सबको सर्व हो जाएगा, यहां तक लिखा होता है। यानी कि एक एक चीज जो थाने में हो रही, इस टाइम पे ये वाला आदमी यहाँ पे आया और उसने ये शिकायत लगाई, मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है, उसकी बात सुनी, ये एक नॉन कॉग्निजेबल केस लगता है, इसलिए हम एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। उसको हिदायत दी गई कि उस कोर्ट में जाए। यानी कौन आया, कौन गया, क्या कार्रवाई की, और अगर एफआईआर दर्ज हुई तो आपने एफआईआर दर्ज की, और उसमें आयोग किसको बनाया, एक एक चीज, किसको गिरफ्तार करके लाए, किसने आपके थाने को विजिट किया, एवरीथिंग इज नोटेड। इसीलिए ये सबसे खतरनाक डॉक्यूमेंट होता है थाने का। इसीलिए जब भी कोई गड़बड़ होती है तो हम बता ही देता हूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, थाने ये रोजनामचा रोक देते हैं। कई बार तो 24-24 घंटे रुका रहता है, इलीगल है ऑफ कोर्स, बिकॉज लीगली इट मस्ट गो ऑन। पर पता है आज दंगा हो रहा है, तो पता चला इस टाइम पे फोर्स गई थी, तो कल को हमें कुछ चेंजेस करने हैं, नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमने आज सुबह पता आज दंगे होने वाले हैं, रोजनामचे रोक दो उस एरिया में, तो सारे थाने कुछ नहीं लिखेंगे 8 बजे के बाद, दंगा हो गया, गोली चल गई, 2 लोग मर गए, अब हम अकॉर्डिंगली मैन्यूवर कर लेंगे सारा, कि 8:30 बजे उसने मैसेज आया कि उस वहां पे वो एसिड बॉम्ब फेंक रहे हैं, अब यहाँ से जाना जरूरी है, अब इमीडिएटली वापिस आए, असला लिया, असला मीन्स गोलियां ली, और तब जाके तो हम सारा कुछ, मतलब अगर यह चल रहा होता तो ये सारी चीजें परमानेंट, क्योंकि रोजनामचा या केस डायरी को फाड़ नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज करना ऑफेंस है। सो दैट इज द रीजन व्हाई रोजनामचा एंड केस डायरी, both diaries are extremely important in the criminal justice system. अब सपोज, अब रोज सपोज एक आईओ है, अब देखो कैसे पकड़े जाते हैं। उसने रोजनामचे में लिखा 8:30 बजे, फला फला मर्डर के इन्वेस्टिगेशन हेतु मैं फला गांव खुर्द कला जा रहा हूँ, वो जा रहा है, ठीक है, उसके साथ मैं इस गाड़ी में जा रहा हूँ, ये गाड़ी नंबर है, ये ड्राइवर है, और 2 ये मेरे लिटरेट कांस्टेबल हैं, हम साथ गए। आज सपोज 1 तारीख है, अपनी केस डायरी में वो 1 तारीख को लिखता है, आज प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे तो मैं बिजी हूं, आज इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। वहां बोल रहा है मैं चला गया, और यहां लिख रहा है आज इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, दोनों में झूठ हो गया, पकड़े गए। सो नाउ इन्वेस्टिगेशन सफर्स। सो दैट इज व्हाई प्लीज रिमेंबर, ये जो दो इतने, जब भी केस डायरी लिखी जाती है, जो अच्छे पुराने पुलिस वाले हैं वो दोनों को इकट्ठा लिख के बैठते हैं, क्योंकि कहीं दोनों में अलग ना हो जाए। अलग हो गया तो बड़ी बुरी तरह फंसोगे, क्योंकि इसका मतलब है फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस में आ जाएगा, ये 7 साल की सजा है। तो दैट इज व्हाई एवरीथिंग हैज टू बी क्लॉकवर्क प्रिसीजन चाहिए। थाना थाना इतना आसान नहीं है चलाना। सो ये सारी चीजें जो होती हैं, सो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, ईच मस्ट सिंक्रोनाइज। इसीलिए 27 रजिस्टर होते हैं थाने में, ताकि एक दूसरे के ऊपर वो नजर रख सके, एक, मतलब एक रजिस्टर दूसरे के ऊपर नजर रख रहा है। और इसीलिए जिसको पूरी नॉलेज है इन चीजों की, वो तो पुलिस वालों का हालत खराब कर सकता है। व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग, तो मुझे वो हाथ जोड़ देते कि सर आप प्लीज मत करो,
क्योंकि मुझे सारी बातें पता थी अंदर की। ये इसीलिए बता रहा हूं कि याद रखना, ये तो दो चीजें हैं। कुछ भी चीज अगर हुई है रोजनामचे में एंट्री होगी, और केस का कुछ भी हुआ है तो केस डायरी में एंट्री होगी। नाउ वंस वी हैव, एक बार हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया, यानी कि हमने क्या क्या कर लिया। हमने विटनेसेस का बयान ले लिया, हमने कोई चीजें जो उठानी थी वो सर्च करके वो हमने रिकवर कर ली, गन रिकवर कर ली, खून रिकवर कर लिया, ओपिनियन एविडेंस भेज दिया, ओपिनियन आ गया, एफएसएल की रिपोर्ट आ गई। इन ऑल दीज केसेस, नाउ वंस वी हैव फाइनलाइज्ड, अब हम फाइनल रिपोर्ट देते हैं। फाइनल रिपोर्ट क्या होती है कि मेरा कल्मिनेशन, यानी कि प्लीज मेंबर, हमारे तीन एक्यूजेशन होते हैं। पहला एक्यूजेशन होता है एफआईआर, वो होता है विक्टिम का एक्यूजेशन। दूसरा एक्यूजेशन होता है पुलिस का, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। फाइनल रिपोर्ट दो तरह की होती है। पहली रिपोर्ट कि ये चीज प्रूव नहीं हुई, जो ये बताया गया, जो एफआईआर दर्ज हुई थी, ये झूठी है। यानी कि हम अपनी लैंग्वेज में पुलिस में कहते हैं एफआर, फाइनल रिपोर्ट। यू नो, पुलिस में जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो सीआरपीसी में नहीं लिखी हुई, पर पूरे इंडिया में वही टर्मिनोलॉजी यूज होती है। क्योंकि अगर प्रूव नहीं हुआ उसको भी एफआर, फाइनल रिपोर्ट कहता है सीआरपीसी, और अगर प्रूव हो गया उसको भी फाइनल रिपोर्ट कहता है। तो हम कैसे एक्सप्लेन करें? फाइनल रिपोर्ट हाँ वो प्रूव है, फाइनल रिपोर्ट नहीं वो नहीं है। इसीलिए पुलिस ने अपना तरीका इजाज किया हुआ है, और वो क्या है कि अगर तो वो प्रूव हो गया कि आपने ऑफेंस किया है, तो हम उसका चालान पुट अप करते हैं। उसको कहते हैं, हम उसके खिलाफ चार्जशीट डाल रहे हैं। चार्जशीट गलत वर्ड है, सीआरपीसी का वर्ड नहीं है। सो चार्जशीट क्या होता है? फाइनल रिपोर्ट, कि मेरे इन्वेस्टिगेशन से इस आदमी ने ऑफेंस किया है, और इसके साथ ये लोग कॉन्स्पिरेटर हैं, इन इन लोगों ने ऑफेंस किया है, ये ऑफेंस किया और इन इन लोगों ने किया है। ये ये जो रिपोर्ट होती है फाइनल रिपोर्ट, ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये भी यहां लिखा नहीं हुआ, ये पहले हम भेजते हैं टू द पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि उसने केस लड़ना है। वो पूरी फाइल पढ़ता है, फाइल पढ़ने के बाद वो इसमें कमियां निकालता है कि आपका केस आप हार जाओगे, इसमें ये कमी है, वापस भेजता है। फिर वो आईओ जो होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन कमियों को दूर करता है। उन कमियों को दूर करने के बाद वापस भेजता है, और पीपी अब लिखता है, अब ठीक है, नाउ यू कैन प्रोसीड। वापस फाइल जाती है। अब ये जो आईओ होता है, ये डीएसपी को फाइल भेजता है। डीएसपी पूरी चीजें देखता है, पूरी गलतियां देखता है, जो पीपी ने कहा था ये गलतियां, वो सारी कवर करता है, और उसके बाद फिर लिखता है पीपी पुट अप चलान। सो तो दो वर्ड यूज हुए, चार्जशीट एंड चलान। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये दोनों वर्ड सीआरपीसी के नहीं है। सीआरपीसी में कोई वर्ड नहीं है, पर क्योंकि ये नॉर्मल, इवन जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वो ऐसी वर्ड बात यूज करते हैं, तो याद रखना, चार्ज वर्ड तो पुलिस के साथ जुड़ा ही नहीं है। चार्ज वर्ड तो सिर्फ मैजिस्ट्रेट के साथ जुड़ा है, बट कॉमन पार्लेंस में हम वर्ड, तो याद रखना, मेरी कल्मिनेशन ऑफ माय इन्वेस्टिगेशन कैन एंड अप इन टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट एस्पेक्ट इज, इट इज प्रूव्ड so and so offense has been committed by so and so person. In other words, I am charge sheeting you, not in terms of CRPC but in my own police terms. जाएगा पीपी के पास, पीपी अपनी गलतियां निकालेगा, वापस फाइल जाएगी। अगर वापस जाएगी, अब पीपी लिखता है अब ठीक है, तब डीएसपी के पास जाएगा, डीएसपी फिर लिखेगा पीपी पुट अप चालान। तो आखिरी जब पुलिस की कार्रवाई होती है, पुटिंग अप चालान। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ये प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूं, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे। पर अगर बाई चांस प्रूव नहीं हुआ, प्रूव क्यों नहीं हुआ? बड़े कारण है। अदम वकू, दीज आर ऑल पर्शियन वर्ड, जो आज भी कोर्ट्स में हम यही वर्ड यूज करते हैं। अदम वकू का मतलब होता है अनअकर्ड। तो एफआर अदम वकू,
मींस ये हुआ ही नहीं, झूठा केस है। ऐसे केसेस में जहां ऐसा होता है तो फिर हम बोलते हैं कि क्यों ना फिर उसके खिलाफ झूठी आपने कार्रवाई की, हमारा टाइम वेस्ट किया। तो हम 182 211 आईपीसी की कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ फॉर लॉजिंग अ फॉल्स एफआईआर। आपको पनिश होना चाहिए। तो जहां पे भी वो लिखता है एफआर अदम वकू, तो कोर्ट की जिम्मेवारी है उसके ऊपर लिखे आपने क्या कार्रवाई की फिर उसके खिलाफ। आपने पैसे लेके तो फटाफट एफआईआर दे दी, तो अब आपसे वापस ही निकलवाते हैं, उसको बंद करो। सो इसीलिए प्लीज मेंबर, अगर एफआर अदम वक्कू अनअकर्ड है तो इसका मतलब है झूठी एफआईआर दर्ज कराई, तो कार्रवाई करो उसके खिलाफ। कौन से सेक्शंस में करते हैं? 182 211 आईपीसी। दूसरा रीजन हो सकता है एफआर अन अनट्रेस्ड, अदम पता। अदम पता का मतलब क्या होता है? पता नहीं चला किसने मर्डर करके कोई लाश फेंक गया था, हम ढूंढ रहे हैं, 2 साल हो गए नहीं मिल रहा, पता नहीं कहां से बंदा आया कहां मार गया, लेक के पीछे बॉडी पड़ी थी। अब पड़े खुला थोड़ा रहेगा, कभी मिलेगा तो फिर खोल लेंगे। तो तब तक हम इसको बंद कर रहे हैं, एफआर अदम पता। तो वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ रीजंस फॉर क्लोजिंग द इन्वेस्टिगेशन। पर क्लोजिंग द इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा खुल नहीं सकती, वो खुल सकती है। नाउ जहां मैंने एफआर दे दी, एफआर अदम बक्कू दे दी, अनअकर्ड दे दी, या मैंने एफआर अदम पता दे दी, वहां पे विक्टिम तो रोएगा कि जी कैसे अनअकर्ड, मुझे मुझे पता है, मुझे मार चांटा पड़ा है, आप कह रहे हुआ नहीं। नाउ इन दैट केस प्लीज रिमेंबर, ही कैन गो डायरेक्टली टू द कोर्ट। कोर्ट में जाके अब वो कहेगा सर मेरी प्रोटेस्ट पिटिशन लो, मैं इस एफआर को नहीं मानता, एंड आई प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एफआर, दिस फाइनल रिपोर्ट। तो अब कोर्ट की जिम्मेवारी होती है कि उसकी सुनवाई करे, और कोर्ट को लगे कि हाँ ये सच बोल रहा है, तो वो फिर खुलवा सकता है। इज एवरीबडी क्लियर? सो पहला स्टेप हुआ कि कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, थाने में एफआईआर दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई, सो जैसे ही फाइनल रिपोर्ट आती है, पुलिस की कार्रवाई खत्म। पुलिस का काम इतना ही होता, बस एक लिमिटेड काम है आगे जाके कि जो जो विटनेसेस का मैंने एविडेंस लिया है, स्टेटमेंट लिया है, उनको मुझे पेश करना है कोर्ट में। ये आखिरी कार्रवाई होती है, इसके अलावा कोर्ट का, पुलिस का काम खत्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। ये तो हो गया कि अगर मेरा ये कॉग्निजिबल ऑफेंस था। व्हाट हैपेंस अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजिबल है, या फिर कॉग्निजिबल है, चांटा मुझे मुझे पिटाई एसपी ने की है। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने सुना है, जहां एसपी ने पिटाई कर दी, आप जाके देखो मेरे थाने में 2 और लगाएंगे, अच्छा एसपी साहब के खिलाफ आया है। अब यू कांट गो टू अ पुलिस स्टेशन। ऐसे मामलों में इवन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में अब आप थाने में तो नहीं जा सकते। सो जहां नॉन कॉग होता है, या कोई कॉग्निजिबल भी है जहां पे आप थाने में नहीं जा रहे फॉर वट एवर रीजन, एक और हमारा तरीका है, और वो है सीधा कोर्ट में जाने का, जिसके अंदर हम कंप्लेंट दर्ज करते हैं। तो मेरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2 तरह से शुरू होता है, एक पुलिस से, एफआईआर से, प्रोवाइडेड वो कॉग्निजिबल हो, और एक सीधा कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन डाल के इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लेंट। याद रखना, सिविल लॉ में प्लेंट से शुरू होता है, या क्रिमिनल का सी जुड़ गया, कंप्लेंट हो जाता है। बट कंप्लेंट सीधा अब कहां होगी? कोर्ट में। यानी कि अब यहां पे पुलिस का कोई रोल नहीं है। पुलिस का अब क्या करेगा? अब वो जो मैजिस्ट्रेट है, वो इसकी अब इंक्वायरी करेगा। तो वो अब इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी में अगर उसको लगे कि डिटेल्ड इंक्वायरी चाहिए, और मेरे पास तो टाइम है नहीं, पहले इतना काम होता है, फिर वो भेज सकता है टू एनीबडी एल्स। सपोज आप वकील हो, आपके गांव में हुआ है, तो यार ये जाके तुम इन्वेस्टिगेट करो। तो मैं किसी पर्सन, कोई पब्लिक के आदमी को भी कह, या मैं पुलिस को भी कह सकता हूँ,
ये मामला आया है मेरे पास, ये बड़े अकाउंट्स का मामला है, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट मुझे दो, मैं अपने आप आगे देखूंगा मुझे क्या करना है। गॉट इट एवरीबॉडी? सो याद रखना, दो तरीके हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू करने के, एक थाने के थ्रू पर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और एक कोर्ट के थ्रू डायरेक्टली, जो दोनों नॉन कॉग्निजेबल एंड इवन कॉग्निजेबल, वो दोनों के दोनों हम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। अब यहां पे मैंने पुलिस की जो कार्रवाई खत्म हो गई थी 173 में, उसने अपनी कार्रवाई खत्म करके कोर्ट में डाल दिया। इधर मैं सीधा गया कोर्ट में और मैंने कहा जी एसपी साहब ने मेरी हड्डियां तोड़ी हैं, तो सर एसपी साहब के खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज करो, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट इस्तगासा। जो वर्ड क्या यूज करते हैं हम कोर्ट्स में, प्राइवेट इस्तगासा। तो इस्तगासा मेरा यूज करो। ये सारे पर्शियन टर्म्स हैं जो आज भी यही चलती हैं, अनफॉर्चुनेटली द सेम वर्ड्स कंटिन्यू। सो इस्तगासा जो होता है या कंप्लेंट जो होती है वो सीधा कोर्ट में होती है। अब उसमें क्या होता है, एक बार कोर्ट ने इंक्वायरी कर ली, तो अब कोर्ट क्या करेगी, या तो उसको लगेगा झूठा है या लगेगा सच्चा है। अगर तो झूठा है, वो कंप्लेंट को उसी टाइम डिसमिस कर देगी, और अगर सच्चा है तो अब उसको वो कोर्ट में बुलाएगी कि अब तेरा ट्रायल चलेगा, और अब जाके वो एक्यूज को बुलाएगी। सो एक चीज याद रखना, यहां आके दोनों कन्वर्जेंस होती है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। यही पॉइंट है सीआरपीसी के, जो कंफ्यूजन है, यहीं पे सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे दो लेवल्स चलते हैं। पहला लेवल है एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, फाइनल रिपोर्ट, राइट। सेकंड, कंप्लेंट, सीधा टू कोर्ट, इट विल इंक्वायर। इंक्वायरी में मैंने अभी अपना दिमाग नहीं लगाया, जुडिशियल माइंड नहीं लगाया। इन दोनों स्टेजेस के बाद पहली बार कोर्ट अपना दिमाग लगाता है, जुडिशियल माइंड यूज करता है। क्या ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ, किसने किया है। तो जहां वो अपना पहली बार दिमाग लगाता है कि हाँ, अपना जुडिशियल माइंड यूज करता है कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो किसने किया, इसको हम कहते हैं टेकिंग कॉग्निजेंस। ये हो जाता है टेकिंग, ये हो गया स्टेप नंबर 2। ये दूसरा, ये हो गया मेरा पहला स्टेप, और ये हो गया मेरा दूसरा स्टेप, टेकिंग कॉग्निजेंस। टेकिंग कॉग्निजेंस इज अ प्री ट्रायल प्रोसेस, ट्रायल से पहले का। टेकिंग कॉग्निजेंस क्या होता है, जो मेरे पास फैक्ट्स अवेलेबल है, जो मेरे पास एविडेंसेस इकट्ठे होके आए हैं, चाहे पुलिस ने दिए चाहे मैंने खुद किए, उसके निष्कर्ष पे, उसका उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, उसका व्हाट इज द आउटकम। अगर मुझे लगता है कि ऑफेंस नहीं हुआ, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा पुलिस की फाइनल रिपोर्ट, सब्जेक्ट टू एनी प्रोटेस्ट पिटिशन। तो अगर मुझे लगा कि सही है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, ऑफेंस नहीं हुआ, तो मैं फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लूंगा, सब्जेक्ट टू प्रोटेस्ट पिटिशन। अब एक बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वही मामला खत्म, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। सिमिलरली, जहां मुझे लगा कि कंप्लेंट झूठी है, मैंने इंक्वायरी की, इंक्वायरी के बाद मामला खत्म। बट सपोज उल्टा है, सपोज एफआईआर में मुझे लगा पुलिस पैसे खा गई है, पुलिस ने उन लोगों को छोड़ दिया,
पुलिस ने गलत धाराएं लगाई हैं। प्लीज रिमेंबर, एफआर इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। कोर्ट चाहे तो बिल्कुल उल्टा कर सकता है। अगर मैंने एफआर दे दी है, अदम वकू दे दी है, वो उसको उल्टा करके उसको कह सकता है दोबारा करो, या वो खुद भी उसको कंप्लेंट केस में कन्वर्ट कर सकता है। अब तो मुझे भी तुम्हारे पे एतबार नहीं रहा, मैं खुद ही कर लूंगा। किसी को हमने एक्यूज छोड़ दिया, उसको बना सकता है। किसी को नहीं बनाया, बना सकता है। ये पहली स्टेज होती है जब कोर्ट किसी को भी एक्यूज बना सकती है या बने हुए को छोड़ सकती है। अब यहां पे जब मैं आपको छोड़ रहा हूं, पुलिस ने कहा जी इसने किया है, मैंने पूरी फाइल पढ़ी, सब देखा, सुन भी लिया आपको, और मुझे लगा नहीं ये नहीं हुआ, तो क्या मैं इसको एक्विट कहूंगा? क्या एक्विटल है ये? नहीं। क्यों? एक्विटल कब होता है? जब सारे एविडेंसेस आए, आपने इन्वेस्टिगेट, आपने चीफ किया, क्रॉस किया, तब जाके। इसलिए यहां वर्ड यूज होता है डिस्चार्ज। तो जहां मुझे प्री ट्रायल में लगा कि आप इनोसेंट हैं, मैंने आपको डिस्चार्ज कर दिया। याद रखना, डिस्चार्ज और एक्विटल का बहुत फर्क होता है। एक्विटल रेजेस डबल जेओपार्डी। एक बार एक्विटल हो गया तो दोबारा नहीं बुला सकते, पर डिस्चार्ज डज नॉट इनवाइट डबल जेओपार्डी। अगर डिस्चार्ज है तो मैं आपको वापस बुला सकता हूं, कल को नए तथ्य आ गए तो मैं आपको वापस बुला सकता हूं, कोई डबल जेओपार्डी नहीं लगती उसके ऊपर। ये तो हो गया पुलिस। तो अब मैंने क्या हुआ कि मैंने अपनी इंक्वायरी की और मैंने कॉग्निजेंस ले लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इंक्वायरी करता हूं, जिसको मैं इस्तिगासा कहता हूं, कंप्लेंट की इंक्वायरी, उसमें मैं एक्यूज को नहीं बुलाता, क्योंकि मुझे नहीं पता सच्ची, कोई भी झूठी आगे बोल दे। एक्यूज को नहीं बुलाते। तो एक्यूज को मैं कब बुलाता हूं? जब मैंने कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या है? कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि मैं कन्विंस हो गया हूं इसने ये ऑफेंस किया है। आई एम कन्विंस्ड नाउ दैट यू हैव कमिटेड सो एंड सो ऑफेंस, वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अगर कंप्लेंट केस है, अभी तक मैंने आपको नहीं बुलाया, अब बुलाऊंगा। सिमिलरली अगर वो पुलिस केस है, तो मैं पुलिस को कहूंगा वो कहां है? सर वो तो जेल में है। ठीक है, बुलाओ उसको। अब मैं एक्यूज को बुलाऊंगा। इन केसेस में नॉर्मली जेल में होता है वो, क्योंकि बेलेबल है तो बेल पे होता है, नॉन बेलेबल है तो छूटा होता है, जेल में होता है। तो दोनों केसेस में मैं एक्यूज को बुलाऊंगा, जिसको हम कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का एंड क्या हो गया? फाइनल रिपोर्ट। उधर दूसरी तरह से क्या शुरू हो गया? कंप्लेंट डाली, कंप्लेंट की इंक्वायरी हुई, और फिर मैंने टेकन कॉग्निजेंस ले लिया। नाउ स्टेप नंबर 3, कॉलिंग द एक्यूज्ड, जिसको हम कहते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। हम इसको क्या कहते हैं सीआरपीसी में? इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस क्यों? किस पर्पस के लिए? टू, अब आपको हम बोलने वाले हैं बुला के, मैं कन्विंस हूं कि तुमने ये ऑफेंस किया है, तुम्हें कुछ कहना है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। मैं तो कन्विंस हूं, मैं तुम्हारे पे चार्ज फ्रेम कर रहा हूं, तुम एक्सेप्ट करते हो? अगर वो कहता है हां, तो वहीं कन्विक्शन हो गया, मामला खत्म, जेल में भेज देंगे। वो कहते हैं नहीं सर, मैं नहीं एक्सेप्ट करता, क्या चाहते हो? ट्रायल। यहां से ट्रायल शुरू होता है। सो बेसिकली in the pre-trial process, while taking cognizance, I'm making up my mind. Which offense has been committed? Who has committed? Once I made up my mind, I'm going to call you. That I'm convinced that you have committed this offense. Do you accept? If yes, fine, I'm going to convict you.
If no, what do you want? I want a trial, sir. Fine. ट्रायल शुरू, यहां से अब थर्ड शुरू, यहां से ट्रायल शुरू हो जाता है. एवरीबडी क्लियर ऑन दिस प्लीज? अब जब ट्रायल शुरू हो रहा है, अब हमने देखा था ट्रायबल बाय सो मेनी, तो ट्रायल मर्डर का है, रेप का है, सीरियस ऑफेंस का है, तो वो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं, कहां जाता है? कोर्ट ऑफ सेशन. कोर्ट ऑफ सेशन में दो हैं आज के दिन में, एडीजे में जा सकता है या सेशन कोर्ट में जा सकता है. दूसरा जाएगा, अब जो अगर सेशन ट्राइबल नहीं है तो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा. तो मैजिस्ट्रेट के पास अगर जा रहा है, हमारे पास कौन कौन से मैजिस्ट्रेट हैं? सीजेएम है, एडिशनल सीजेएम है, जेएम 1 है, जेएम 2 है. अब हमें पता है कि कौन सा जेएम को ट्राई करेगा, वो क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है, वही करेगा. तो फ्रेमिंग भी वही करेगा. अब जब मैजिस्ट्रेट के पास आ रहा है तो हमने देखा कि दो तरह के केस है, इसीलिए मैजिस्ट्रेट के ट्रायल जो है दो तरह के हो गए. एक ट्रायल ऑन पुलिस केसेस एंड दूसरा ट्रायल ऑन अदरवाइज देन अनपुलिस केसेस. तो अब हमने सेशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के कोर्ट को अलग करना है. तो हम एक काम करते हैं, उनको सेशन ट्रायल केसेस कहते हैं, इनको वारंट केसेस कह देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे. तो इसीलिए सेशन ट्रायबल केसेस को हम सेशन केसेस कह देते हैं और इनको हम वारंट केसेस कह देते हैं. सो वारंट केस कौन से हो गए? जो मैजिस्ट्रेट ट्राई करेगा. मैजिस्ट्रेट कौन से ट्राई, तो अब वारंट केस दो तरह के हो गए. कौन से? एक जो एफआईआर से शुरू हुए थे और दूसरा जो कंप्लेंट से शुरू हुए थे. दोनों का प्रोसीजर अलग है, एक में तो पुलिस है, एक में वो खुद है. तो दो अलग प्रोसीजर चलेंगे. अगर कंप्लेंट केस है, वो खुद ही है सब कुछ, तो खुद ही करेगा. बट वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ अ ट्रायल, तो वो अलग सिस्टम है. और अगर एफआईआर के थ्रू आया, एफआईआर पुलिस की आई है ये वाली, तो फिर अलग होगा. सो इसका मतलब हो गया, टेकिंग कॉग्निजेंस के बाद अगला प्रोसेस क्या हो गया? इशू ऑफ प्रोसेस. इश्यू ऑफ प्रोसेस हो गया, हमने एक बुला लिया कि उसको. इश्यू ऑफ प्रोसेस के बाद अगला क्या हुआ? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद ट्रायल. तो अगर मैं ट्रायल की बात करूं, अभी कौन सा है सचिन? अब नेचुरली अगर मैं ट्रायल की बात करूं तो याद रखना कितने टाइप के ट्रायल हो गए. पहला सेशन ट्रायल, दूसरा वारंट केस ट्रायल. वारंट केस ट्रायल दो तरह का हो गया, एक जो एफआईआर से शुरू हुआ था और दूसरा जो कंप्लेंट से शुरू हुआ था. एफआईआर वाला पुलिस इन्वॉल्व है, इसमें तो मैं ही इन्वॉल्व हूं. तीसरा बहुत छोटे केस है, पूरा लंबा चौड़ा ट्रायल का तरीका नहीं फॉलो करना, समन्स ट्रायल. प्रोसीजर छोटा है, तो जितना बड़ा केस उतना बड़ा प्रोसीजर. तो सबसे बड़ा इलैबोरेट प्रोसीजर किसका होगा? सेशन. सबसे छोटा किसका होगा? समन का. अब समन केसेस में भी कई तो बहुत ही छोटे. एक मैगी चोरी है, मेरे पकड़ा था, मेरे एक थानेदार, बहुत डांट भी खाई थी उसने. वो मैगी चोर को पकड़ेगा क्या, आज सुबह हम देखे मॉर्निंग रिपोर्ट, तो 379 में का क्या चोरी हुई आज? सर पूरा डब्बा था. मैं किस चीज का? सर मैगी का. दिल तो मेरा किया दो लगाऊं उसके. तो मैं कहा व्हाई डिड यू रजिस्टर अ केस? सर आपने बोला है कि बर्किंग नहीं करनी, हर केस को दर्ज करना है. नाउ नाउ इससे छोटा केस क्या अब हम चाहते हो कि मैं पूरा 5 साल लगाऊं उसके ट्रायल पे? सो वी विल हैव अनदर टाइप ऑफ ट्रायल, समरी ट्रायल. चार ट्रायल हो गए हमारे. तो सेशन ट्रायल, वारंट केस ट्रायल विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, समन ट्रायल. एंड समन ट्रायल में कुछ हिस्से कुछ हम समरी तरीके से ट्राई कर सकते हैं. सिंपल है ना? कितना ये एक्चुअली पता है कंफ्यूजन कहां होता है? जो दो तरह के मैं बताता हूँ, कंप्लेंट और एफआईआर के जो है उस वहां पे कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि दोनों एक जगह मर्ज कर जाते हैं इशू ऑफ प्रोसेस पे. थिंक वी रन आउट ऑफ टाइम. यहां से विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. जहां, थैंक यू.